Hey guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on role of Pharmacy and Therapeutic Committee in developing emergency drug list. For my previous videos on Pharmacy and Therapeutic Committee, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. Let's talk about the role of PTC in developing emergency drug list. So since the time factor is of very great urgency to most true emergency situation, so it is absolutely necessary for the pharmacy and the therapeutic committee of a hospital to get prepared box containing emergency drug which should be always available readily for use at the bedside. तो क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस आती है या ऐसी अर्जेंसी कंडीशंस आ जाती है जिसमें कि आपको कोई भी जो इमरजेंसी ड्रग्स रहती हैं उनकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी को वो सारी जितनी भी इमरजेंसी मेडिकेशंस रहती है तो उनका बॉक्स प्रिपेयर करना पड़ता है। तो वो बॉक्स जो रहता है उसको आप पेशेंट के बेड साइड पर ही रखो ताकि कुछ भी इमरजेंसी कंडीशंस आती है तो उस समय आपको इधर उधर ना भटकना पड़े और रेडीली यू कैन गिव द मेडिकेशन टू दैट पेशेंट। सो लिस्ट ऑफ सच ड्रग एंड केवल ड्रग ही नहीं होती है, देखा जाए तो दूसरे भी बहुत सारी ऐसी इक्विपमेंट होते हैं या नेसेसरी ऐसे सप्लाईज होते हैं जो कि आपको एमरजेंसी किट में रखने ही होते हैं। So a list of such drugs and other supplies should be completed by the committee and it should find their place in the emergency kit. The emergency kit में you have to place the drug and the supplies. So the supplies to be maintained in emergency box. तो क्या क्या supplies होते हैं जो कि आपको emergency box में रखने होते हैं? तो first is the syringe of various ranges to each. हर एक जो रहते हैं उसको हर एक ml के आपको 2 syringes आपको रखनी पड़ती है। जैसे कि 1 ml दैट इज़ फॉर ट्यूबरकुलाइन और द इंसुलिन सिरिंज के लिए आपको सिरिंज के लिए आपको यूज़ आती है। देन 2 ml सिरिंज एंड 5 ml सिरिंज। तो हर एक सिरिंज को आपको दो तो एमरजेंसी बॉक्स में रखनी ही पड़ेगी। एंड एक एक जो सिरिंज रहती है आपको 10 ml की और 20 ml की रखनी पड़ती है। देन निडल्स प्रिफरेबली ऑफ द 16, 18, 20, 21, 23 एंड 26 की रखनी पड़ती है साइज में। देन द फाइल्स फॉर ब्रेकिंग द एम्प्यूल्स. Then you have to place the tonic weights, then the airway equipments, then you have to place the rice tube. Then next is a drug for the emergency box. तो कौन सी ड्रग्स रहती है जो कि आपको emergency box में प्लेस करनी पड़ती है according to the consultation with the physician. So aminophylline that is for 0.25 gram per ml. Then amyl nitrate glass capsules for inhalation of atropine. Then you have to place sulfate 0.4 mg per ml. Then caffeine sodium benzoate which is required of 0.5 gram per 2 ml. Then calcium gluconate 1 gram per 10 ml. Then digoxin that is 0.25 mg per ml. Then diphenylhydrantoin sodium that is 50 mg per ml. Then ephedrine HCl that is 1 mg per ml. Then heparin that is 10 units per ml you have to provide heparin. Then hydrocortisone that is 100 mg. Then magnesium sulfate injection which is of 10% and 50% you have to place in the emergency kit. Then प्रोटेनॉल दैट इज़ 1:100 का रेशियो आपको प्लेस करके रखना पड़ता है। देन मैनिटोल इंजेक्शन विच इज़ ऑफ 25% नालोरफेन. देन HCl of 10 mg per 2 ml you have to keep. Then neostigmine methyl sulfate of 0.25 mg per ml. Then norepinephrine injection which is of 0.2% you have to place. Then phenobarbital of 50 mg per ml. And then fentazocine. Then phenylephrine HCl that is 10 mg per ml you have to keep. Then thiomethazone injection. Then picrotoxin injection 3 mg per ml. Then procinamide 100 mg per ml. Then protimine sulfate that is 20 mg per ml. Then saline for injection that is 0.9% or 30 ml you have to keep. Then sodium molar lactate solution. Then water for injection 20 ml. देन सप्लाइज फॉर कैबिनेट यूटिलिटी रूम. तो जो भी कैबिनेट यूटिलिटी रूम रहता है तो उसमें क्या क्या सप्लाइज की ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ venous cannulas and set. Then each set of 12 and 17 venous catheter pieces you need. Then 6 shock blocks आपको चाहिए रहते हैं. फिर ऑक्सीजन कैथरेटर्स आपको चाहिए रहते हैं.
then sterile suction catheters, then razor with blades you need, then the package sterile gelatinous sponge you have to keep, then resuscitation tube आपको चाहिए होती है, और अदर जो इमरजेंसी सप्लाईज होती है जिसमें कि रिसक्सेशन कार्ट, देन फिलोबॉबिटोमी सेट्स ऑफ ऑक्सीजन, देन इक्विपमेंट्स जो भी आपको नेसेसरी होते हैं वो चाहिए होते हैं, फिर ट्रैक्योटोमी सेट्स चाहिए रहते हैं, फिर डेक्स्ट्रेन एंड ट्यूबिंग रहते हैं, देन बर्न शीट्स रहती है। तो जो भी ये सारी जो चीज़ें रहती है आपके हॉस्पिटल में होनी चाहिए। सो दिस लिस्ट कैन बी मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द हॉस्पिटल की जो भी नेसेसरी आइटम्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको रखने पड़ते हैं। फिर बात करते हैं रोल ऑफ पीटीसी इन ड्रग प्रोडक्ट डिफेक्ट रिपोर्टिंग प्रोग्राम। तो जो ड्रग परचेज होती है हॉस्पिटल से मे बी डिफेक्टिव इन द क्वालिटी, तो डिफेक्टिव भी हो सकती है ड्रग जो परचेज कर रहे हैं। तो इट इज़ फॉर द कमिटी टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफेक्टिव ड्रग प्रोडक्ट एंड टू इन्फॉर्म इट फर्स्ट टू द मैन्युफैक्चरर फॉर द अप्रोप्रिएट एक्शन। तो कभी कभी क्या होता है कि जो डिफेक्टिव क्वालिटी की आइटम जो रहते हैं वो हॉस्पिटल में आ जाते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि कमेटी को सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर रहता है उसको बताना पड़ता है, और अगर मैन्युफैक्चरर से उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है तो वो फिर उसके बाद में फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि भैया पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर जो है उनको जो डिफेक्टिव आइटम्स मिले थे तो उनके रिगार्डिंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, दैट इज़ द फ़ोन नंबर, देन XYZ हॉस्पिटल का नाम रहता है, देन एड्रेस रहता है, और डेट जो कब रिसीव हुई थी वो आपको मेंशन करनी पड़ती है, देन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ड्रग डिफेक्ट रिपोर्ट जो रहती है तो वो आपको कैसे रेफरेंस नंबर यू हैव टू प्लेस अ रेफरेंस नंबर, देन you have to write the trade name of that particular medication, then the dosage form, then what is the strength of that medication, then lot number कौन से lot से रिसीव हुई थी, then you have to write the expiry date of that particular lot, then कब परचेज करी थी आपने, और सप्लाई का नाम यू हैव टू मेंशन, देन नेम ऑफ एंड द एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर यू हैव टू मेंशन, देन जो फार्मासिस्ट ने ये चीज़ रिपोर्ट करी तो उसका नाम यू हैव टू मेंशन, देन डिफेक्ट नोटेड और सस्पेक्टेड, तो क्या डिफेक्ट नोट हुआ सस्पेक्ट हुआ यू हैव टू राइट, देन विद द डेट एंड साइन ऑफ द चेयरमैन फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी के साइन और सिग्नेचर आपको चाहिए होते हैं। तो ये पूरी डिफेक्ट आइटम की रिपोर्ट ऐसे प्रिपेयर होती है। देन रोल ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी इन ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू, तो ड्रग का यूटिलाइजेशन कैसे होता है उसका जो रिव्यू रहता है उसके ऊपर क्या रोल रहता है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी का। So drug utilization include the prescribing, dispensing, administrating and ingesting of the prescription of the drug. So hospital pharmacist should take medication history that should include the following information. तो क्या क्या चीज़ें include होती है उसमें, that is the medication being taken at the time of the admission, during the admission or home remedies. तो पूरा जो ड्रग का यूटिलाइजेशन होता है उसका पूरा रिव्यू लेना रहता है, तो उसके ऊपर मेडिकेशन जो रहती है वो कब ली गई है, जब एडमिशन हुआ तो उसके टाइम ली गई है, या ड्यूरिंग एडमिशन चल रही है, या फिर होम रेमेडीज़ या दैट इज़ जो OTC ड्रग्स ली जा रही है, या ड्रग एलर्जीज़ एंड आइडियोसिंक्रोसी टुवर्ड्स द फूड प्रोडक्ट ETC। तो आइडियोसिंक्रेसी का क्या मतलब होता है कि जो भी ड्रग इंड्यूस डिसीजेज़ होती हैं या ड्रग फूड इंड्यूस्ड डिसीजेज़ रहती हैं तो वो एलर्जीज तो नहीं है। तो इसमें जो रिपोर्ट आपको बनानी रहती है दैट इज़ द पर्टिकुलर XYZ हॉस्पिटल का नाम, देन द पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल जिसमें कि आपको रिकॉर्ड नंबर लिखना होता है, फिर नेम ऑफ द पेशेंट यू हैव टू मेंशन, देन उसकी एज क्या है, सेक्स क्या है, मेल या फीमेल है, देन डेट ऑफ एडमिशन कब है उसका, फिर एड्रेस उस पर्टिकुलर पेशेंट का, देन द एडमिशन डायग्नोसिस क्या हुआ था, अदर कुछ पैथोलॉजीज कंडीशन तो नहीं है वो लिखना पड़ता है, फिर प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन यूज़ क्या है, तो डेट यू हैव टू राइट, देन कौन सी ड्रग वो यूज़ करा था, देन उसका डोज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कब की गई थी, कब डिसकंटिन्यू करी गई थी, क्या रिमार्क आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें यू हैव टू मेंशन इन दैट रिपोर्ट। So basically it help to improve the drug description practice by promoting the safe and rational use of the drug, then it detect and help to prevent the drug interaction, then to help detect and prevent the adverse drug reaction, फिर to detect and prevent the IV additive incompatibilities, तो जब भी आप IV additives देते हो तो कुछ incompatibilities होती है तो उसको भी आप detect and prevent कर सकते हो, then drug induced diseases को भी आप detect कर सकते हो, then ड्रग इंड्यूस डिसीजेज़ को जितनी भी पॉसिबल है उनको आप डिटेक्ट कर सकते हो, दैन टू हेल्प डिटेक्ट एंड पोटेंशियल ड्रग टॉक्सिसिटीज़ को आप डिटेक्ट कर सकते हो।
तो बेसिकली जो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी रहती है वो एक तरीके से एक हॉस्पिटल फार्मेसी का बैकबोन होता है, जो कि बेसिकली इट सर्व्स एंड देयरफॉर इट शुड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए. That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.